जी बोल। नहीं 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 नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस जगह पे बात पूछ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इन 74 सालों को आज तक 1947 और 2021 के बीच? देखिए, अलग अलग दौर होते हैं। 1947 तक डोगरा राज था, उसके बाद जम्मू कश्मीर जो रखना चाहिए। भाइयों के खिलाफ तैयार कर ली, जिसमें जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक अहम किरदार था।
दुनिया के इतिहास में ये लिखा गया कि कश्मीरी औरतों ने अपने डिफेंस के लिए हथियार उठाए और हिंदुस्तानी फौज के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हो गए। मौन हूँ, पहल ना करूं, किसी से डरती नहीं, जीत की चाह नहीं, हार मानती नहीं। झांसी की रानी के पद चिन्हों पे चलते हुए महिलाओं ने एक मकसद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए हथियार उठाए। इस इतिहास को एक लोकल न्यूज़पेपर में यूं लिखा गया, दुनिया के इतिहास में पहली बार कश्मीर की औरतों ने एक किया और इसी दिन कश्मीर हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा बन गया। कश्मीर और कश्मीरी अवाम को जुल्म और बर्बरियत से बचाने के लिए कश्मीर रवाना हो गए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से DC-3 एयरक्राफ्ट, फर्स्ट सिख रेजिमेंट की 2 कंपनियां और कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को लेकर कश्मीर की ओर निकला। 27 अक्टूबर सुबह 9:30 पर DC-3 एयरक्राफ्ट ने बहुत जोखिम उठाते हुए श्रीनगर की अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप पर लैंड किया। 75 years back, a daring airlift by the fledgling Indian Air Force got India's map, the crown it has depicted ever since. It was a historic moment when the Dakota DC-3 AC landed on the dusty airstrip of just 600 meters, followed by the other 2. Never in the history of warfare was such an airlift undertaken with so little notice and planning. Lord Louis Mountbatten, Indo-Pak War, and the rest, as they say, is history. Ladies and gentlemen, please give it up for the Dakota DC-3. जा रहे हैं, ठीक वैसे ही हमारा जहाज फिजाओं को चीरता हुआ कश्मीर की सरजमीन पर belongs to the same valiant squadron, the 12th squadron. Today, the aircraft is captained by squadron leader Abhi. बहादुर शेरों, आज वो घड़ी आ गई है जिसका हर फौजी इंतजार करता है। दुश्मन साडे नेड़े आ गया है। सारे कमर कस लो ते दुश्मन दे दंद खट्टे करन लई I don't know what effect these men will have on the enemy, but by God, they terrify me. चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी। The 4 Para SF is going to perform the small team insertion and extraction. Ladies and gentlemen, these brave hearts will be slithering down for us today. First out, we have Naib Subedar Tilak Raj. But not the least, Paratrooper Kailash. Ladies and gentlemen, this unique military action uses hard intelligence, sophisticated equipment, and rigorously trained and motivated soldiers and aviators. Can we have a big round of applause for the aviators and for the 4 paratroopers? जिद पर अड़ जाएं तो रुख मोड़ दे तूफानों का। तुमने
hear the thud of an ALH making way to the target area to extricate the spot. Forces stealthily moving towards the advanced light helicopter. We need to give a loud applause for the pilots, Major Megan Joglekar and Major Sumit. आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जो मुश्किलें पत्थर सी उनसे लड़ने का जज्बा पर्वत सा होना चाहिए। तुझे रोके जो चिंगारी तेरे भीतर ज्वाला दहकनी चाहिए। They believe in this core spirit. Ladies and gentlemen, the Indian Army, the 4 Para SF. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the 207 Army Aviation SCON and the elite 4 Para Special Forces. You can see the team being extracted. They're flying in the famous arrowhead formation. We fly past of the 20 Pandey. Of rolls disappearing into the blue yonder. Symbolizing the Indian Air Force motto, Namaskar Shakti Ka, touch the sky with glory. What a sight that was. Their sacrifice should be remembered always. आज के मूर्ति के बारे में तो पूछ ही रहे हैं। वही आप मूर्ति उसके ट्वीट जो किया है ऑफिस से आया था ना सुनील खास अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। Today, we remember those who risked their lives to protect our freedom. Their selfless act of valor that was done without asking for anything in return. आज हम उन सभी वीरों को नमन करते हैं। Ladies and gentlemen, Please give it up for the elite 4 Para Special Forces. जम्मू कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीरी आवाम को बचाने के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। 75 साल पहले आज ही के दिन करीब 3 घंटा पहले लगभग सुबह 8:30 बजे पहला डकोटा एयरक्राफ्ट लेफ्टिनेंट कर्नल
DR राय की अगुवाई में श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा था, जिसे आज हम सबने अपनी आंखों से देखा है। पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी फौज द्वारा ढाए जा रहे जुल्म, हजारों बेगुनाहों और मासूम बच्चों के कत्ल, हमारी हजारों मासूम बेटियों और बहनों पर किए जा रहे बर्बर अत्याचार से लोहा लेने के लिए और जम्मू कश्मीर की एक एक इंच भूमि की रक्षा करने की भारतीय सेना के समर्पण, वीरता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अद्भुत दास्तान है। कई बार लोग कहते हैं कि साहब जम्मू कश्मीर पर कबायली हमला हुआ था। मुझे लगता है कि इतिहास में अब सुधार की जरूरत पड़ गई है। सच तो ये है कि कबायली के वेश में पाकिस्तानी फौज के जवान थे, जिन्होंने हमारे बेगुनाह भाइयों को बेरहमी से कत्ल किया, हमारे घरों को जलाया, हमारी बहनों और बेटियों की असमत लूटी। लोगों को सच्चाई समझनी होगी कि हमारा पड़ोसी आतंक का पर्याय आज नहीं बना है। आजादी के बाद से ही आतंक को पालने पोसने का काम कर रहा है। 22 अक्टूबर को ब्लैक डे पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जुनैद मीर की अगुवाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। मैंने भी उस कार्यक्रम में शिरकत की थी और मैंने एक बात कही थी कि नई पीढ़ी को बताने की जरूरत है कि विश्व में आतंक के सबसे बड़े रहनुमा हमारे पड़ोसी मुल्क ने सिर्फ 99 के कारगिल आक्रमण में ही नहीं झूठ बोला, बल्कि 75 साल से झूठ बोलता चला रहा है और निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल रहा है। मुझे याद है, कुछ पुराने दस्तावेज मैंने पढ़े हैं और आज ही के दिन 1947 में दिन के 3 बजे दिल्ली को मैसेज भेजा गया था कि बारामूला में पाकिस्तानी आतंकियों ने तबाही मचा रखी है। लोगों के घर, अस्पताल और चर्च जला दिए गए और सभी डॉक्टर्स, नर्सेस को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी हमने साक्षात अपनी आंखों से सब देखा है। बारामूला की सड़कों पर उस दिन सिर्फ आतंक था, चारों तरफ बिखरी लाशें थीं। सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी थोड़े बहुत जिंदा बच गए थे, उन्होंने घर द्वार छोड़कर पहाड़ों में शरण ली थी। और इसलिए सालों से फैलाई जा रही भ्रांतियों को तोड़ना तथा पड़ोसी मुल्क और उसके मुट्ठी भर स्लीपर सेल के मुंह से नकाब उतारना आज जरूरी हो गया है। आज के दिन मैं बारामूला के बहादुर नौजवान मकबूल शेरवानी और परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की पुण्य स्मृति को भी प्रणाम करता हूं। मैं महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल राय को भी सत सत नमन करता हूं। अगर 27 तारीख की रात को उन्हें सिर में गोली नहीं लगती तो सैकड़ों पाकिस्तानी आतंकियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया होता। चिनार कोर के साथियों को मैं 3 नवंबर की एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। बर्बरता की दास्तां क्यों नहीं जन जन तक पहुंचाई गई? क्यों नहीं अवाम को पाकिस्तान की काली करतूतों के बारे में बताया गया? क्यों नहीं मेजर सोमनाथ शर्मा, मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल राय की कहानियां अभी तक स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही? और आज हम कहना चाहते हैं कि अब कहानियां अगले साल से जम्मू कश्मीर के सिलेबस में पढ़ाई जाएंगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व पर हम सभी का ये दायित्व है कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले इन सूरवीर योद्धाओं की कहानियां हर बच्चे की जुबान पर हो। मित्रों, श्रीनगर 1947 की पीढ़ी ने राहत की सांस ली थी जब 4 और 5 नवंबर की रात को शहर की तरफ बढ़ रहे ट्राइबल लश्कर के वेश में पाकिस्तानी फौज को श्रीनगर से पहले ही त्रिकुल बल के पास हमारे वीर जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया था। दिल में कश्मीरियत और जुबान पर एक ही नारा, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन 4 रहे न रहें। ये हमारी भावना है, ये हमारे वीरों की संस्कृति है।
जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक हमारे दिल का, हमारे शरीर का अटूट हिस्सा है। मानवता के सबसे बड़े दुश्मन ने हमेशा आतंकवाद को विश्व भर फैलाने का काम किया है और कोई भी सभ्य समाज ऐसा नहीं है जिसको तहस नहस करने की कोशिश नहीं की है। अभी भी नापाक कोशिशें चल रही हैं और ऐसे में आप सभी को देश के सम्मान, अखंडता और जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक की रक्षा के लिए हमेशा चौकन्ना रहना होगा। मुझे आपकी आत्मशक्ति और संकल्प शक्ति पर गर्व है। आज जम्मू कश्मीर समृद्धि और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि समृद्धि और विकास की पहली और अनिवार्य शर्त होती है शांति, और शांति कायम करने में आप सबका जो योगदान है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। देश के विकसित राज्यों में जल्द ही इसका नाम शुमार हो, यह भारत सरकार की प्राथमिकता है। भारतीय सेना के सभी तीनों अंग दिन प्रतिदिन मजबूत हों, उनका शौर्य बढ़े और राष्ट्र के सभी नागरिकों की रक्षा की महान परंपरा एवं कर्तव्य को हमेशा इसी तरह अपने मजबूत कंधों को लेकर चलें, मैं ऐसी कामना करता हूं। मित्रों, अभी आपने देखा है जहां सेना के पराक्रमी बहादुर जवानों ने जम्मू कश्मीर को बचाने में अपना सर्वोच्च बलिदान किया, वहीं कश्मीर की आवाम ने भी जो नारे लगाए, मुझे लगता है उसको स्मरण करने की जरूरत है। पाकिस्तानियों का नारा था सिखों का सर, हिंदुओं मुसलमानों का जर, और कश्मीर की आवाम इसके जवाब में नारा दे रही थी, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। मुझे लगता है मैं कश्मीर की आवाम से निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपका नारा रहा है और मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है कि फिर से इस नारे को बुलंद किया जाए, आपसी भाईचारा बढ़ाया जाए और जो ताकतें जम्मू कश्मीर में विकास को रोकना चाहती, जम्मू कश्मीर के अमन और चैन में खलल डालना चाहती हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब हम सब मिल करके दें। Nordic sir for racing cross country run. This snowboard. This is the stretcher for casualty evacuation. So this is the HAPO bag. These are the equipments which we use while we are in raft. Climbing shoes, mittens. These are all are the ने उन्हीं दिनों से सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए राज्य रेलवे मंत्री भी रहे। पिछले 14 महीनों से जम्मू और कश्मीर में हमारे निमंत्रण और अनुग्रह की बात करता हूं तथा आप सभी के दोनों में फिर भी जिस तरह कठिन संघर्ष के बाद जान की बाजी लगाकर आप लोगों ने एवरेस्ट पर परचम लहराया है, उसी तरह से हम सब ने भी सोचा है लक्ष्य पर पहुंच करके ही विश्राम किया जाएगा। कर्नल थापा ने इंस्टीट्यूट के लिए कुशल नेतृत्व दिखाया है और पूर्व के प्रिंसिपलों ने मुझे लगता है कि उसमें 4 चांद लगाया है। व्यक्तिगत गौरव की बजाय स्पोर्ट्स समुदाय की उन्नति के लिए इन लोगों ने निरंतर प्रयत्न किया है। मैं उन्हें सभी पूर्व प्रिंसिपल्स तथा इंस्टीट्यूट के समर्पित इंस्ट्रक्टर चंदर नेगी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों तक जानकारियां पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्वतारोहण से जोड़ने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मैंने सभी 4 कोर्सेज का विवरण देखा है। एवलांच रेस्क्यू कोर्स से लेकर स्कीइंग कोर्सेस में बहुत कम फीस में आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।